Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and other fellow listeners, hope that you all are feeling well. Let us have a debate on entitled theme Educational Implications of Cattells' Trait Theory of Personality. As we know that R.B. Cattel was a British-born psychologist who has propounded the trait theory of personality. As per the trait approach, traits are called the building blocks of personality. Now in today's lecture, we will focus on various educational implications of Cattells' trait theory of personality. Dear students, educational implications simply means when we will use the theory in the field of education in order to make the education system productive, progressive, by and large, goal oriented. यानी कि जब हम किसी भी थ्योरी को एजुकेशनल फील्ड में यूज करते हैं, आई मीन टू से यू इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज नोन एज एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस. और हाउ द थ्योरी, या हम कह सकते हैं फाइंडिंग्स ऑफ द थ्योरी helps to us to make education system progressive, result oriented. इसीलिए हम किसी भी थ्योरी को एजुकेशनल फील्ड में यूज करते हैं. यहां पर सिर्फ अब एजुकेशन इम्प्लीकेशंस की बात नहीं है. ट्रेट अप्रोच को जितनी की भी ट्रेट थ्योरीज है उन्हें इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है. तो हम ये भी कह सकते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ द थ्योरी. इसी तरह से डिफेंस में भी ट्रेट अप्रोच को यूज किया जाता है. सो फार एज आवर कंसर्न इज कंसर्न्ड, वी हैव टू सी इम्पैक्ट ऑफ ट्रेट अप्रोच इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. नटशल में हम कह सकते हैं व्हेन वी विल यूज द थ्योरी in the field of teaching and learning, that is known as educational implications. हम ट्रेट अप्रोच को इसलिए टीचिंग एंड लर्निंग में यूज करते हैं so that to make the teaching learning process effective, productive, by and large goal oriented. Dear students, we will discuss various educational implications of trait factor theory, which is propounded by British-born psychologist, namely R.B. Cattel, जिसे रायमंड बी कैटल के नाम से भी जाना जाता है. There are various educational implications. One by one, we will discuss all. Number 1. Individualized instruction. Dear students, trait theory of personality, which is propounded by R.B. Cattel, describes the various traits, particularly unique traits. रायमंड बी कैटल ने यूनिक ट्रेट्स का कॉन्सेप्ट दिया. एज पर द trait classification is concerned, it means unique traits are those which are particular in a person or in an individual. With the help of trait approach, we can know the unique characteristics, यानी कि हम कह सकते हैं unique personality characteristics possessed by an individual. Dear students, trait psychology believes on individual differences, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की अपनी पर्सनालिटी है. एक इंडिविजुअल
एक तरह से यूनिक है, दूसरा इंडिविजुअल दूसरी तरह से यूनिक है। हर एक इंडिविजुअल में अपना अपना यूनिक ट्रेट पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सब जानते हैं, देयर आर 5 फिंगर्स इन द हैंड, all are not equal. Same is the case with every individuality. Every individual is unique in terms of all personality characteristics like temperaments, sentiments, desires, wills and wishes, capacities and capabilities. टोटो में हम कह सकते हैं, इन एवरी रेस्पेक्ट हर कोई इंडिविजुअल डिफरेंट है। अगर हम एजुकेशनल प्रिज्म से देखेंगे, टीचर हैज टू डील विद द हेटेरोजेनियस एनवायरनमेंट, क्योंकि क्लासरूम में हर कोई बच्चा जो है वो यूनिक है। हर एक लर्नर में अपनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, टेस्ट्स है, डिजायर्स है, विल्स एंड विशेस है, या हम कह सकते हैं पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। टीचर हैज टू डील और accommodate every learner. Teacher has to provide the education to every learner as per the learner's capacity, capability, interests, and other personality characteristics. So that is why trait approach of Raymond B. Cattells believes on individualized instruction. क्योंकि जब हम इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन डिजाइन करेंगे as per the individualized approach, we can provide the education. I mean to say you, teacher can provide the education or simply assist the every learner as per one's personality characteristics. तो हम नटशल में कह सकते हैं, individualized instructions helps every individual, I mean to say you learner, to get or receive the education as per one's needs and requirements. Dear students, education is the birthright, और हम कह सकते हैं fundamental right of every individual, but it does not mean हमें हर एक इंडिविजुअल को सेम टाइप ऑफ एजुकेशन देनी है, यूनिफॉर्म एजुकेशन देनी है। नो, एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट, इट मीन्स टू प्रोवाइड द एजुकेशन टू एवरी लर्नर एज पर वनस कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। यानी कि हमें प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मेंटेन करना है। एज वी नो दैट principle of equity simply means to provide the education to every learner as per the requirement, as per the need. Dear students, अगर किसी लर्नर में कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है एक कॉन्सेप्ट सीखने की, तो हम कंपेल उसे नहीं करेंगे, आपको 2 कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। किसी लर्नर में कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है 4 कॉन्सेप्ट सीखने की, हम उसे कंपेल नहीं कर सकते हैं, आप 2 ही सीखो। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं, नीदर वी कैन सैक्रिफाइस द स्लो लर्नर और एवरेज स्टूडेंट फॉर द सेक ऑफ गिफ्टेड, नॉर गिफ्टेड कैन बी सैक्रिफाइस्ड फॉर द सेक ऑफ एवरेज और स्लो लर्नर। इक्वली हमें जस्टिस हर एक इंडिविजुअल के साथ करना है। दैट इज वाई प्रियोरिटी इज गिवन टू द इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। जब हम इंडिविजुअल अटेंशन पे करेंगे एज पर द इंडिविजुअल्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, ऑटोमेटिकली हर एक लर्नर के साथ जस्टिस हो जाएगा। वी विल अचीव आवर गोल्स, या हम सिंपली कह सकते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। Dear students, in addition, it also helps them to advance academically.
यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन जो है ये हर एक लर्नर को हेल्प करती है इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स, पर्टिकुलरली एकेडमिक अचीवमेंट। जैसे कि एकेडमिक अचीवमेंट सिंपली मीन्स द प्रोग्रेस शोन बाय द लर्नर इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स, तो उसे एकेडमिक अचीवमेंट कहते हैं, या हम दूसरे मायने में कह सकते हैं एकेडमिक एक्सीलेंस। तो हर एक लर्नर की एकेडमिक परफॉर्मेंस को हम टू से यू टीचर इंप्रूव कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। नंबर सेकंड, पर्सनालिटी असेसमेंट। डियर स्टूडेंट्स, हम किसी भी लर्नर को असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। टू से यू टीचर कैन नॉट हेल्प टू द स्टूडेंट until or unless teacher will not evaluate the personality of every learner। जैसे कि हमने प्रीवियस पॉइंट में डिस्क्राइब किया, हर एक लर्नर की पर्सनालिटी जो है वो डिफरेंट है, इसीलिए डिफरेंसेस को जानने के लिए वी हैव टू असेस द पर्सनालिटी ऑफ एवरी लर्नर। हर एक पर्सनालिटी को हमें असेस करना है। हर एक स्टूडेंट जो है, या हम कह सकते हैं लर्नर जो है, उसकी पर्सनालिटी को एसेस और इवालुएट करना है। तब हमें हर एक लर्नर के नेचर के बारे में पता चल जाएगा। टू से यू वी कैन अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एवरी लर्नर बाय अप्लाइंग वेरियस पर्सनालिटी असेसमेंट टेक्निक्स। फॉर इंस्टेंस, इंटरव्यू, rating scales, self-reports, personality inventories, projective techniques, and behavioral observations. These are various personality assessment techniques. तो इन टेक्निक्स को जब हम यूज करेंगे, या हम कह सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज करेंगे, तो टीचर के लिए आसान बनता है टू असेस और इवैल्यूएट द लर्नर्स पर्सनालिटी। जब वो इवैल्यूएट हर एक लर्नर की पर्सनालिटी को करेगा, एंड अकॉर्डिंगली ये आसान हो जाएगा एक टीचर के लिए टू मीट द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ एवरी लर्नर। जैसे कि हम सब जानते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज एंड इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज। जो एक्सट्रोवर्ट लर्नर्स होते हैं उनमें अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, जैसे कि वो कॉन्फिडेंट होते हैं, बोल्ड होते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं। और जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो असोशल होते हैं, वो एलिनेटेड होते हैं, वो लेस टॉकेटिव होते हैं, बाय एंड लार्ज शाई होते हैं। Now we have to fulfill the needs, यानी कि teacher has to fulfill the needs and requirements of both extrovert students and introvert students। अगर introvert traits कोऑर्डिनल फॉर्म में होंगे तो ये बहुत कठिन होता है एक टीचर के लिए, या हम कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट के लिए, उन ट्रेट्स को, उन क्वालिटीज को चेंज करना। Now how then we will accommodate them? तो किस तरह से एक टीचर इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स के नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा, और किस तरह से टीचर एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट्स के नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा, क्योंकि बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट आर पोल्स अपार्ट। कीपिंग इन व्यू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज, dear students, extrovert personalities can be benefited from cooperative learning। यानी कि टीचर जो है वो एक्सट्रोवर्ट बच्चों को लर्न करवाएगा बाय मीन्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जो पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सट्रोवर्ट बच्चों के होते हैं वो मोर सोशेबल होते हैं, मोर एम्पैथेटिक होते हैं, मोर बोल्ड और करेजियस होते हैं। तो वो पसंद करते हैं
कोऑपरेशन में लर्न करने का, या कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है वो एक्सट्रोवर्ट बच्चों को सूट करती है। लेकिन जो कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग है ये इंट्रोवर्ट बच्चों को सूट नहीं कर सकती है, ये उन्हें सूट नहीं करती है। नाउ सेम वे टीचर कैन आल्सो असिस्ट, हेल्प, गाइड टू द इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज, या हम कह सकते हैं इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स। इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स असोशल होते हैं, लेस टॉकेटिव होते हैं, लेस बोल्ड होते हैं, शाई टाइप होते हैं, तो उन्हें सूट करता है इंडिपेंडेंट टास्क्स, क्योंकि इंट्रोवर्ट बच्चों को मजा आता है इंडिपेंडेंट टास्क्स में। इंडिपेंडेंट टास्क्स आर दोज टास्क्स विच आर परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली। तो एक टीचर इंडिपेंडेंट टास्क्स का अरेंजमेंट इंट्रोवर्ट बच्चों के लिए करेगा, तो वो भी अकॉर्डिंगली एक्सीलेंस दिखाएंगे इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, वो भी अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं, उनकी भी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाएगी, जिस तरह से एक्सट्रोवर्ट बच्चों की होती है बाय मीन्स ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। और ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कोलैबोरेटिव लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग किन बच्चों को सूट करती है? तो एप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर इज एक्सट्रोवर्ट। जो इंडिपेंडेंट टास्क्स होते हैं वो सूट करते हैं इंट्रोवर्ट बच्चों को। नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। डियर स्टूडेंट्स, हम लर्नर्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं टिल वी विल नॉट अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स, या हम कह सकते हैं ट्रेट्स ऑफ द इंडिविजुअल। इसीलिए जो रेमंड बी कैटल ने ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी दी है, हम लर्नर्स के पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स को जान सकते हैं। टीचर के लिए आसान हो जाएगा टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द वेरियस पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, आई मीन टू से यू लर्नर, क्योंकि व्हेन यू विल पुट द लर्नर इन डिफरेंट सेवरल सिचुएशंस, वो अपने बिहेवियर को एक्सप्रेस करता है। किस तरह से जो लर्नर है वो क्लासरूम में डील करता है, किस तरह से सेम लर्नर जो है वो प्लेग्राउंड में डील करता है, या अदर सोशल सिचुएशंस। तो नटशल में हम कह सकते हैं बिहेवियर जानने के लिए वी हैव टू नो वेरियस पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, या हम कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ एवरी लर्नर। तो अकॉर्डिंगली जब हम पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, यानी कि जब टीचर बच्चों के पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स बाय ऑब्जर्विंग देयर बिहेवियर जानेगा, accordingly teacher will help to the learners, I mean to say you student community, to channelize their capacities and abilities. For instance, teacher will understand the personality characteristics या personality attributes such as friendliness. एक लर्नर जो है ये कितना फ्रेंडलीनेस है, सोशेबिलिटी, बच्चा जो है वो कितना सोशल है और वो कितना असोशल है, ऑनेस्टी, हेल्पफुलनेस, फेयरनेस, पंक्चुअलिटी, पेशेंस, रेस्पॉन्सिबल, वरीड, अनफ्रेंडली, एग्रेशन एंड अदर पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। जब एक टीचर ये क्वालिटीज जानेगा कि कौन सा बच्चा ज़्यादा सोशल है, कौन सा बच्चा कम सोशल है, किस बच्चे में पंक्चुअलिटी ज़्यादा है, किस बच्चे में पंक्चुअलिटी कम है, कौन सा लर्नर बुरी फील करता है, किस लर्नर में जल्दी एंजाइटी और डिप्रेशन पाया जाता है या डेवलप होता है, विच लर्नर इज मोर प्रोन टू द एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस या अदर टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। देन आफ्टर अकॉर्डिंगली टीचर विल deal these problems which are faced by the
learner in the learning setting. तो वो अकॉर्डिंगली इन प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सकता है और बच्चों को प्रॉपरली हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम्स विच आर कन्फ्रंटेड बाय द लर्नर्स. अपार्ट फ्रॉम इट, टीचर विल आल्सो असिस्ट एवरी लर्नर इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स. क्योंकि पर्सनालिटी प्रोफाइल जानने से, जब एक टीचर ने बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स जाने, पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स जाने, उसके क्वालिटीज़ को जाना, तो उसके लिए आसान हो जाएगा टू डिज़ाइन द करिकुलम, टू डिज़ाइन द इंस्ट्रक्शंस, और वी कैन से दैट टू डिज़ाइन द प्रॉपर मेथडोलॉजी एंड प्रोसीजर इन ऑर्डर टू गाइड द एवरी लर्नर इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, या हम कह सकते हैं एकेडमिक्स. तो टीचर के लिए आसान हो जाएगा टू प्रमोट द एकेडमिक एक्सीलेंस among the learners. Number 4th, personality development. Dear students, personality development of the learner is not possible until the teacher will not understand the personality characteristics. यानी कि टीचर के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है. जैसे कि हम सब जानते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज द फंडामेंटल एम ऑफ एजुकेशन. ये ऑलराउंड डेवलपमेंट में एक फंडामेंटल एम है. तो एक टीचर जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक लर्नर में नहीं ला सकता है until the teacher will not understand the personality characteristics. Dear students, as we know that Raymond B. Cattells has given the concept of 16 personality factors. According to R.B. Cattells, अगर हमें ट्रूली पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है, आई मीन टू से यू, किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को समझना है, वी हैव टू फर्स्टली स्टडी द 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स. क्योंकि अकॉर्डिंग टू रेमंड बी कैटल, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी. यानी कि ट्रू सेंस में हम हर एक व्यक्ति या इंडिविजुअलिटी को समझ सकते हैं जब हम उसके 16 पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे. तो टीचर के लिए आसान होगा टू एसेस एंड स्टडी द 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स. और वो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स विल हेल्प टू द टीचर to know the strengths and weakness of every learner. किस एरिया में लर्नर स्ट्रांग है और किस एरिया में लर्नर वीक है, ये वो तब जान सकता है जब वो पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेगा, especially the 16 personality factors. For instance, warmth, reasoning, emotional stability, dominance, liveliness, rule consciousness, social boldness, sensitivity, vigilance, abstractness, privateness, apprehension, openness to change, self-reliance, perfectionism, and tension. These are 16 personality factors. 16 personality factors को जानने से टीचर के लिए आसान होगा हाउ टू असिस्ट द लर्नर. किस तरह से हम लर्नर की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं और किस लर्नर में कौन सी प्रॉब्लम है, उसके लाइफ इश्यूज क्या है, और अकॉर्डिंगली वो टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकता है. जैसे कि कोई लर्नर कम सोशली बोल्ड होता है, टिमिड होता है, हाउ टू डील विद timid or asocial persons, how to deal with those persons who possess the emotional instability. तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी के बारे में कैसे पता चल जाएगा? when we will check particular type of factor, और हम कह सकते हैं trait. तो अकॉर्डिंगली टीचर हर एक लर्नर को हेल्प कर सकता है, उसकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को समझ सकता है, एंड फाइनली the teacher will lead to the every learner
towards the growth and development, especially the personal development. वो इंडिविजुअल लेवल पे फिर हर एक इंडिविजुअल को अपनी फितरत से, अपने ट्रेट्स के हिसाब से उसकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकता है, क्योंकि टीचर को ध्यान में रखना है टू फुलफिल द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स एज पर द पर्सनैलिटी मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, क्योंकि प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किया देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज पर द डिफरेंशियल साइकोलॉजी इज कंसर्न, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, या हम कह सकते हैं पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है इंडिविजुअल लेवल पे पर्सन को समझना, और यह हम समझ सकते हैं बाय नोइंग द पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अकॉर्डिंगली एक इंडिविजुअल की पर्सनल नीड्स को फुलफिल किया जा सकता है, सो दैट ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, या हम कह सकते हैं लर्नर विल टेक प्लेस। नंबर 5, ग्रुप बिहेवियर। Trait approach will help the teacher community in recognizing each student's style of work, motivation, and level of aptitude, and ultimately lead to grouping. Dear students, trait approach से एक टीचर को हेल्प मिलेगा to know the or to recognize the style of the work of every learner, to understand the बेसिक क्वालिटीज ऑफ एवरी लर्नर। यानी कि जो फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी रायमंड बी कैटल ने दी है, उसे टीचर को हेल्प हो जाएगा टू नो द क्वालिटीज ऑफ द एवरी लर्नर, यानी कि स्टाइल ऑफ वर्क, मोटिवेशन, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, टेम्परामेंट्स, सेंटिमेंट्स एंड अदर पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स। तो एज पर द पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एक टीचर के लिए आसान हो जाएगा फिर ग्रुपिंग करना। आई मीन टू से यू टू क्लासिफाई द लर्नर्स इन वेरियस कैटेगरीज, जैसे कि एक इंस्टीट्यूट में होते हैं या पर्टिकुलर क्लासरूम में होते हैं स्लो लर्नर्स भी, जीनियस भी, एवरेज स्टूडेंट्स भी, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स भी। तो जब एक टीचर ने बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया, वो क्लब करेगा उन्हें एक ग्रुप में, एबो एवरेज को एक ग्रुप में क्लब करेगा। इसी तरह से स्लो लर्नर जो है उनके लिए और एक ग्रुप बनाएगा, एंड लाइकवाइज गिफ्टेड या हम कह सकते हैं जीनियस बच्चों के लिए भी एक ग्रुप बनाएगा। एज वी नो दैट देयर इज वन ऑफ द स्कूल सिस्टम, दैट स्कूल सिस्टम इज नोन एज पे सेटिंग स्कूल्स। पे सेटिंग स्कूल्स का कॉन्सेप्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 ने दिया, विच हैज़ बीन डिजाइनड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ राजीव गांधी। ये पे सेटिंग स्कूल्स किन बच्चों के लिए? दोज पे सेटिंग स्कूल्स आर बेसिकली फॉर द गिफ्टेड एंड जीनियस चिल्ड्रन। देयर स्टूडेंट्स, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली हाईली डेवलप्ड होते हैं, इसीलिए उनके लिए अलग स्कूल्स बनाए गए हैं जिन्हें हम कहते हैं पे सेटिंग स्कूल्स। इसी तरह से स्पेशल स्कूल्स आर मेंट फॉर द स्पेशल चिल्ड्रन। तो सेम वे हम कह सकते हैं यहाँ पर जो ट्रेट साइकोलॉजी है ये हेल्प करती है पॉलिसी मेकर्स को, साइकोलॉजिस्ट्स को, बाय एंड लार्ज टीचर्स को टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द डिफरेंट लर्नर्स एंड मेक particular type of grouping as per their capacities, as per their abilities. So then after they fulfill their needs and requirements. तो accordingly हर एक ग्रुप में जो स्टूडेंट्स है उनकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती है। नंबर 6, कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। Dear students, as we know that career guidance and counseling cannot be given by the unprofessional person. एक अनप्रोफेशनल पर्सन कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग नहीं दे सकता है, क्योंकि कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए एक एक्सपर्ट होना चाहिए, प्रोफेशनल पर्सन होना चाहिए। प्रोफेशनल पर्सन इज दैट वेरी पर्सन हु possesses द इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द फील्ड। हर एक लर्नर को कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है in order to excel in particular field,
या फॉर द सेक ऑफ ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑल द लर्नर्स needed the career guidance and counseling. Dear students, trade psychology helps to provide the assistance or support in the field of career. यानी कि कैरियर एडवांसमेंट के लिए जो काउंसलर्स है या प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट पर्सन्स है वो कैरियर गाइडेंस दे सकते हैं लर्नर्स को. And trade psychology will help to support every learner to receive the career guidance and counseling. By knowing the various personality traits, personality characteristics like desires, temperaments, sentiments, capacities and capabilities, wills and wishes of every learner, यानी कि हर कोई लर्नर जो है वो अपनी फितरत के हिसाब से चलता है. हर एक लर्नर में अपने टेस्ट्स है. किसी का डिज़ायर है टू बिकम द म्यूजिशियन, और जिस बच्चे का टेस्ट है म्यूजिक में या डांस में, हम उसे टीचर नहीं बना सकते हैं. जो लर्नर इंटरेस्ट रखता है टीचिंग एंड लर्निंग में, हम उसे डॉक्टर नहीं बना सकते हैं. और जो लर्नर इंजीनियर बन सकता है या जिसमें इंजीनियर बनने की सलाहियत है, हम किसी और फील्ड में उसे धकेल नहीं सकते हैं. तो नटशल में हम कह सकते हैं यानी कि हमें कैरियर सिलेक्ट करना है हर एक लर्नर के लिए एज पर वन्स ओन पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स. डियर स्टूडेंट्स, कैरियर गाइडेंस के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती है. देयर आर द 3 फंडामेंटल factors by which you can provide the career guidance. बहुत से लेक्चर्स में प्रीवियसली हमने डिस्कस किया. वर्ल्ड्स बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इज फाउंड स्पेशली इन द यूरोपियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज. जैसे कि फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम हाईली डेवलप्ड है, नॉर्वे का एजुकेशन सिस्टम हाईली डेवलप्ड है. वो ब्लाइंडली किसी भी बच्चे को किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए सिलेक्ट नहीं करते हैं. दे आर फर्स्टली गिविंग ड्यू इंपॉर्टेंस टू द पर्सनैलिटी टेस्ट्स, एटीट्यूड टेस्ट्स, मोटिवेशन टेस्ट्स और अदर साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेक्निक्स आर यूजिंग इन ऑर्डर टू चेक द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ एवरी लर्नर. तो फिर अकॉर्डिंगली वो एक लर्नर के लिए पर्टिकुलर फील्ड ढूंढते हैं, क्योंकि कैरियर बिल्डिंग के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. फर्स्ट, इंटरेस्ट और मोटिवेशन लेवल ऑफ द लर्नर, कि लर्नर जो है उसमें मोटिवेशन लेवल किस फील्ड में बनती है. सपोर्ट्स में, म्यूजिक में, इंजीनियरिंग में, एयरक्राफ्ट्स में, टीचिंग में, फैशन में, डांस में, बिजनेस में और अदर फील्ड्स. सेकंड इज कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, यानी कि बच्चे की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी जानना. क्योंकि अगर बच्चे में इंटरेस्ट है पर्टिकुलर फील्ड में लेकिन उसमें कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है तो वो उस फील्ड में आगे नहीं जा सकता है. इसीलिए कैरियर गाइडेंस के लिए ऑल फैक्टर जो है उन्हें ड्यू इंपॉर्टेंस दी जाती है. जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर दर्शाया है, इंटरेस्ट और मोटिवेशन लेवल ऑफ द लर्नर. बच्चे की टेस्ट्स को जानना है, इंटरेस्ट और मोटिवेशन लेवल को जानना है, तो उसके बाद अकॉर्डिंगली कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, क्या इसमें सलाहियत है इस फील्ड में आगे जाने की, ये उतना कैपेबल है इस फील्ड में ये ग्रो कर सकता है. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट इज मार्केट वैल्यू. अब इंटरेस्ट भी है, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी भी लर्नर में पाई गई है, लेकिन फिर भी कैरियर गाइडेंस जो है इट इज़ गिविंग ड्यू इंपॉर्टेंस. जिस फील्ड में आप इसे बेचना चाहते हो तो उस फील्ड का मार्केट वैल्यू है कि नहीं, यानी कि वहाँ पर वो अपना रोजगार कमा सकता है कि नहीं, उसे स्कोप है कि नहीं. तो कैरियर गाइडेंस के लिए ये 3 चीज़ें ज़रूरी होती है. सो कीपिंग इन व्यू द कैरियर गाइडेंस एंड
काउंसलिंग। हम ब्लाइंडली लर्नर के लिए फील्ड सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स ड्यू इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द वेरियस पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स बाय कंडक्टिंग द वेरियस साइकोलॉजिकल टेस्ट्स। हमें हर एक लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चल जाएगा। तो अकॉर्डिंगली द इंस्टीट्यूशन, टीचर्स, they can select or choose the appropriate course which is as per the need, as per the requirement, as per the motivation, as per the capacities and capabilities of the learner। इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज के जो लर्नर्स होते हैं वो बाई चॉइस फील्ड में होते हैं, और हमारे लर्नर जो अधिकतर होते हैं वो बाई चांस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्कूलिंग लेवल से हायर लेवल तक एटीट्यूड टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट नहीं किए जाते हैं। इसीलिए हम ब्लाइंडली बच्चों को पर्टिकुलर फील्ड में भेजते हैं या डालते हैं, जिसकी वजह से वो फेलियर के शिकार हो जाते हैं, वो एक्सेल उन फील्ड्स में नहीं कर पाते हैं। अब उनका एकेडमिक्स ही ज़ाया नहीं हो जाता है, लाइफ ही ज़ाया नहीं हो जाती है। मोर एवर दैट इट लीड्स देम इन द साइकोलॉजिकल स्टेट वेयर द लर्नर हैज़ मैक्सिमम चांस that to become the victim of psychological problems like anxiety, depression, क्योंकि उन्हें मन के हिसाब से नहीं मिलता है। इसीलिए ज़रूरी है एजुकेशन में, किसी भी फील्ड में जब आप बच्चे को डालोगे वो उसके मन के हिसाब से होना चाहिए, उसके नेचर के हिसाब से होना चाहिए, बच्चे के सेंटिमेंट्स के हिसाब से होना चाहिए, कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज के हिसाब से होना चाहिए। Therefore, trait approach helps to know personality characteristics like integrity, strong work ethics, communicative, flexible, team-oriented, technically competent, determined, eager to learn more, loyal, problem-solving, independent, ambitious, responsible, goal-oriented, confident, adaptable, and dependable। ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स जान सकते हैं एक इंडिविजुअल के। जितनी की भी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम हर एक लर्नर के जान सकते हैं, यानी कि ओवरऑल पर्सनैलिटी प्रोफाइल जो है वो हम लर्नर का जान सकते हैं, और अकॉर्डिंगली वी विल हेल्प और चैनलाइज द कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ एवरी लर्नर। नंबर 7, रिड्यूस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। जैसे कि हम सब जानते हैं, लर्नर्स आर कन्फ्रंटिंग डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स विद इन द होम, in the social environment, by and large in the school। क्योंकि हर एक लर्नर में अपनी पर्सनैलिटी है, वो अपने फितरत के हिसाब से चलता है। तो विद द हेल्प ऑफ 16 PF क्वेश्चनियर हम हर एक लर्नर की पर्सनैलिटी को जान सकते हैं। लर्नर्स में फियर पाया जाता है, दे हैव चांस टू बिकम द विक्टिम ऑफ फोबियाज, उनमें चांस होता है एंग्जाइटी प्रोन बनने के, डिप्रेशन कॉमनली पाया जाता है, ओवर परफेक्शनिज्म बच्चों में पाया जाता है क्योंकि उनमें ओवर परफेक्शनिज्म का ट्रेट है, एंड ओवर परफेक्शनिज्म इज रिलेटेड टू द ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यानी कि जिन बच्चों में ओवर परफेक्शनिज्म होता है वो लर्नर जो है वो एक ही टास्क पे अटकते हैं, तो आगे जाने का नाम नहीं लेते हैं क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी में ये कैरेक्टर है। परफेक्शनिज्म इज गुड कि एक्यूरेटली माइन्यूटली हर एक चीज को देखना ताकि परफेक्शन आ जाएगा। जिस बच्चे में परफेक्शनिज्म ट्रेट होता है वो अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाता है, लेकिन जिस बच्चे में ओवर परफेक्शनिज्म की प्रॉब्लम है, इट इज रिलेटेड टू लाइक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वो बार बार एक ही टास्क को रिपीट करता है, तो इससे क्या होता है वो अपने गोल से दूर भागता है। दे स्टूडेंट्स ऐसे भी बच्चे हैं जो एलूफ होते हैं, एलिनेटेड फील करते हैं, टेम्परामेंटल फील करते हैं, सैड होते हैं, हार्ट ब्रेकिंग होते हैं, रूल ब्रेकिंग होते हैं, फीलिंग शेम, केयरलेस, बाय एंड लार्ज डिपेंडेंस। दीज आर द वेरियस प्रॉब्लम्स, या हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय डिफरेंट लर्नर्स। अब इन प्रॉब्लम्स से डील करने के लिए टीचर विल यूज द थेरेप्यूटिक मेजर्स। किस तरह से एक बच्चे के पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स पुश करते हैं एक लर्नर को टू लीड इन द साइकोलॉजिकल स्टेट
where the learner becomes victim of depression, anxiety, stress, and other types of mental conflicts. तो इन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से डील करने के लिए टीचर विल यूज वेरियस थेरेप्टिक मेजर्स, आई मीन टू से यू ट्रीटमेंट टेक्निक्स, एंड दोज ट्रीटमेंट टेक्निक्स will guide to the teacher to reduce the psychological problems and promote the overall growth and development in the learner. This was all about the today's lecture. In next lecture, we will discuss another important theory which is entitled as Trait Theory of Personality, propounded by G.W. Alpert. Dear students, if you really enjoyed my lecture, I believe that you will be connected with the Grow Strong, and in future, accordingly, we will make the operation of rest of the papers which are related to your different discourses, चाहे अंडर ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेस हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेस हैं, सीटेट के कोर्सेस हैं, या अपार्ट फ्रॉम दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक सेट एंड यूजीसी नेट जेआरएफ. Before concluding, do not forget like, share and hit the bell icon so that you will get the upcoming lectures. Thank you and grow strong.